Hello students, this is Pawan Vishwakarma and you are watching me on our official portal of Uma Vasanti Public School. So students, I hope you are enjoying your life and this Corona crisis. आपको पता भी होगा कि हम लोग इस एपिडेमिक क्राइसिस से गुजर ही रहे हैं, लेकिन आपका जो इंस्टीट्यूट है उमा बसंती पब्लिक स्कूल, इन्होंने डिसाइड किया है कि आपका जो स्टडी है वह विदाउट एनी इंटरप्शन बढ़ता ही रहे, चलता रहे, जिससे कि आपकी स्टडी में, आपकी स्किल में, आपके परफेक्शन में कोई भी कमी ना आए और हम लोग आपके साथ कॉन्टीन्यूसली बने हुए हैं। सो आपकी स्टडी जारी रहे, जिसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ दैट इज बेस्ड ऑन sentences and clauses. I mean clauses and sentences, and you know very well about clauses and sentences. So dear students, let's start about our topic that is clauses and sentences. So now let's start. So here is first is clauses. First is clauses. Now we have to discuss about clause. So what is a clause? What is a clause? As we know, clause is a part of sentence. What is that? Clause is a part of sentence that has a subject and predicate, but it does not have any complete sense. Means of that, it is a part of sentence. A clause is a part of sentence that has a subject and predicate. What is that? That has a subject and predicate. As you know, what is the subject and what is the predicate? Okay, but here is the differences as between both clause and sentences, such as it does not have a complete sense. Means of that, a clause does not have any type of a complete sense, because this part of clause, I mean this part of sentence always adds with some types of conjunctions such as coordinate clauses, I mean coordinating conjunctions such as cumulative, alternative, adversative and elative. These types of conjunctions joins many clauses, two or more than two. So clause, once again I want to repeat that. What is a clause? It is a part of sentence. What is that? It is a part of sentence and that has a subject and predicate. I mean the clause consists of subject and predicate, but it does not have any type of complete sense. Okay, but there is an identification about that. There is an identification about clause. You can identify a clause between a statement very easily. Because of that, you should have to find firstly you should have to find conjunctions or relating words that joins two statements, I mean two clauses. Look here. As an example, here he said that he was tired. He said that he was tired. What we see here? He said it is our first statement and he was tired, it's our second statement. It is first statement and it is second statement, and we find that both sentences, I mean both clauses are joined with that conjunction. It is conjunction, so it is relative words also. It is relative words also, and this is conjunction that joins two clauses. Number first is he said and he was tired. Here are two clauses. But about sentences, so let's find out its definition. Firstly, a sentence also is a group of words, but it is a group of
meaningful words. What is that? It is a group of meaningful words. A sentence is a group of meaningful words. It has a subject and a predicate also. Same as clause. Because of that, clause is also a part of sentence. जैसा कि हम जानते हैं कि जो क्लॉज है वह सेंटेंस का ही एक पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट होता है जो किसी न किसी कंजक्शन से ऐड रहता है, ज्वाइन रहता है. So for that, about sentence, it is a group of words or meaningful words. I mean a word that has something as particular or mean. तो यहाँ पर है कि ऐसे शब्द जिसमें कोई मीनिंग होती है, हम ऐसे शब्दों को जोड़ करके एक स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं, एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं जिसमें कि एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट का होना बहुत ही कंपल्सरी है. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसी स्टेटमेंट में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बट इट हैज अ कंप्लीट सेंस. इट हैज अ कंप्लीट सेंस. आई मीन अ सेंटेंस हैज अ कंप्लीट सेंस. कह सकते हैं कि जो डिफरेंसेस है दोनों में, क्लॉज इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, व्हाइल अबाउट सेंटेंस इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, and here is that has a subject and predicate. I mean a clause has a subject and predicate, and also the sentence has a subject and predicate, but there is a minute differences between both, but it is a great differences. Okay, here is it does not, I mean a clause does not have a complete sense, while about a sentence has a complete sense. जबकि हमने देखा यहाँ कि क्लॉज के पास कोई कंप्लीट सेंस नहीं होता है, लेकिन सेंटेंस के पास हमेशा कंप्लीट सेंस होता है. और जो सेंटेंस होता है हमें वो फॉर्म किया जाता है नियर अबाउट 4 और 5 टाइप्स में, सच एज असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव एंड ऑपरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी. बट मोर इवन इनके अलावा भी कुछ हैं, जैसे सिंपल है, कंपाउंड है एंड कॉम्प्लेक्सेस है. और सेंटेंसेस को पार्ट भी किया गया 2 पार्ट में. फर्स्ट है सब्जेक्ट एंड सेकंड है प्रेडिकेट. इट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट होता है और दूसरा होता है प्रेडिकेट. बट मैंने जैसा कि आपको बताया कि सेंटेंसेस के 5 टाइप्स भी होते हैं, असर्टिव, इंपेरेटिव, इंटरोगेटिव, ऑपरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी. बट अबाउट क्लॉजेस इट इज फर्स्ट. So we have to discuss about clauses very firstly. तो हमें इसके बारे में सबसे पहले पढ़ना चाहिए. जो clauses होते हैं नियर अबाउट ये 3 टाइप्स में होते हैं. नंबर फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्लॉज, नंबर सेकंड इज सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड नंबर थर्ड इज कोऑर्डिनेट क्लॉज. एज यू ऑल हैव रिमेंबर्ड अबाउट दैट, जैसा कि आप लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, याद कर चुके हैं कि क्लॉजेस क्या होते हैं, इनके कितने टाइप्स होते हैं, ये किससे जुड़े होते हैं, ये सब आपको पढ़ाया जा चुका है. बट इट इज़ रिमाइंडिंग, आई मीन सिलेबसेस एंड क्यूरिकुलम्स एंड चैप्टर्स ऑफ योर्स. ये आप लोगों का एक ऐसा चैप्टर, एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सिलेबस है जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. हम फिर आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में. ओके, मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल दिया था, ही सेड दैट ही वाज टायर्ड. आपको मैं बता दूं, ये पूरा का पूरा ये कंप्लीटली एक स्टेटमेंट है. क्या है? एक सेंटेंस. अब मैं सेंटेंस को यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसका. तो मैंने आपको बताया कि ही सेड दैट ही वाज टायर्ड, ये एक स्टेटमेंट है, फुल्ली स्टेटमेंट है, दैट हैज अ कंप्लीट सेंस. ओके, बट अगर हम इसको पार्ट कर रहे हैं, इसको अलग अलग कर रहे हैं, तो हमें देखिए, हम अगर इसको अलग करें तो हमारा एक पार्ट यहाँ से ये तैयार हो गया, ये, और दूसरा पार्ट हमारा ये. ठीक है, जैसा कि मैंने बताया आपको, आपके ये कंप्लीटली एक स्टेटमेंट है और इसमें 2 पार्ट तैयार हो गए. कितने पार्ट तैयार हो गए? 2 पार्ट तैयार हो गए. अब ये जो 2 पार्ट्स आप देख रहे हैं, इसमें इन दोनों को हम लोग क्लॉजेस कहेंगे. कैसे आप क्लॉज बना सकते हैं? क्योंकि क्लॉज में सब्जेक्ट होना चाहिए और प्रेडिकेट होना चाहिए. ये सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आल्सो. Means of that we see here
the both classes has a subject and predicate। अब यहाँ देखें, he subject है, set predicate है, he subject है and बाकी सब predicate है, and both clauses are joined with a conjunction that is that। ये conjunction से जुड़ा है जो that है, ठीक है। तो अब हम इसको कह सकते हैं कि एक प्रकार का सेंटेंस है। अब कुछ और एग्जांपल, सिंगल स्टेटमेंट्स के एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ मेन स्टेटमेंट्स लेते हैं। जैसे क्योंकि हमें अभी प्रिंसिपल एंड सबऑर्डिनेट क्लॉजेस भी पढ़ रहे हैं। Here Ram tells a lie. What is that? Here is a person known as Ram and he tells a lie. अब अगर मैं कहूंगा कि ये भी एक स्टेटमेंट है, जैसे कि मैंने कहा था कि ये पूरा फुल्ली एक स्टेटमेंट है, अब मैं ये भी कहूंगा कि ये एक स्टेटमेंट है। अब आप इसको पार्ट करिए और पार्ट करिए, जितने पार्ट बन जाएं उन सभी पार्ट्स में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होना चाहिए। कहां से आप पार्ट कर रहे हैं, यहां से या यहां से? अगर आप यहां से पार्ट करेंगे तो राम सिर्फ एक सब्जेक्ट है, ठीक है, और बाकी ये सब प्रेडिकेट है। बट इनके अलावा हमारे पास कोई दूसरा पार्ट नहीं है जो कंजक्शन से जुड़ा हुआ है। जबकि क्लास क्या होता है, एक ऐसा भी पार्ट होता है जो कंजक्शन से ऐड रहता है, जुड़ा रहता है। अब यहाँ देखिए, राम टेल्स अ लाई, राम हमारा सब्जेक्ट है एंड टेल्स अ लाई क्या है, प्रेडिकेट है। सो नेक्स्ट अबाउट दैट, अब हम इसी को दो क्लासेस में बना सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया कि एवरीबॉडी नोज that Ram tells a lie। अब यहाँ देखें, ये भी कंप्लीटली एक स्टेटमेंट है। ये देखें, यहाँ मैंने क्या बोला, ये फर्स्ट स्टेटमेंट इज आवर सेकंड स्टेटमेंट एंड बोथ आर जॉइंड विद अ कंजंक्शन एज दैट, जो दैट से जुड़ा हुआ है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने दोनों क्लासेस में कंजंक्शन दैट को ही ऐड किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों क्लासेस में सिर्फ कंजंक्शन दैट ही ऐड होगा। कंजंक्शंस जैसा कि मैंने आपको बताया पर्टिकुलरली दो होते हैं, एक कोऑर्डिनेटिंग होता है, एक सबऑर्डिनेटिंग होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं वो 4 टाइप्स में होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग भी होता है। सबऑर्डिनेटिंग नियर अबाउट वो होते हैं कि जैसे कि हम लोग एडवर्बियल कंजंक्शंस पढ़ते हैं, ठीक है, तो वही सब के सब हैं। अब हम यहाँ इसको थोड़ा सा देखते हैं, फिर मैं आपको कंजंक्शन के बारे में बताता हूँ, ठीक है। Now let's watch again classes. Once again about classes. As we have learned about the definition of classes and its examples. Now, how many types of clauses are there? How many types of clauses are there? There are 3 types of clauses. Number first is principal clause. Number second is subordinate clause, and number third is coordinate. What is that? Coordinate. These are the 3 types of clauses. First is principal clause, second is subordinate, and third is coordinate. Now about the very first principal. Now first is principal clause. So what is a principal clause? A principal clause is a main clause. It is a main clause, or you can say as a free clause. Main clause or a free clause. It does not depend on any other statement. It does not depend on other clauses. So how would you like to find about that? आप इसके बारे में कैसे पता करना चाहेंगे, कैसे जानना चाहेंगे? तो इट्स वेरी सिंपल, बिकॉज अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था राम टेल्स अ लाई, और मैंने एक और एग्जांपल दिया था एवरीबॉडी नोज दैट राम टेल्स अ लाई। ये 2 एग्जांपल मैंने दिया था आपको। सो जो इसमें फ्री क्लास था, पहले
स्टेटमेंट का ध्यान दीजिए, जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो एक मेन क्लॉज होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। कौन सा क्लॉज होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज में इंडिपेंडेंट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज में इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो हम ये कर सकते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज होता है और इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। मैंने यहाँ देखें, मैंने कहा राम tells a lie. It is our first statement, but we have to add this statement with the other class. जैसे everybody knows that Ram tells a lie. So look at that statement. Everybody knows Ram tells a lie. So which statement is joined with the conjunction? Just find out about that. हम ये देख रहे हैं कि कौन से स्टेटमेंट को जोड़ा गया है कंजक्शन से। आप देखेंगे ये तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट, इज आवर फर्स्ट स्टेटमेंट, सो इट इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल क्लॉज। ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है बिकॉज इट इज द स्टेटमेंट दैट इज इंडिपेंडेंट सेंस। यही एक ऐसा क्लॉज है जो इंडिपेंडेंट सेंस में है, ठीक है। ये हमारा फ्री क्लॉज है बिकॉज ऑफ दैट हियर इज अ स्पीकर, इट इज स्पीकर एंड दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब। ये एक रिपोर्टिंग वर्ब है, ये स्पीकर और ये एक रिपोर्टिंग वर्ब है। एंड जो हमारा अगला स्टेटमेंट है वो इसी पर डिपेंड है, आई मीन हमारे प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड है ये स्टेटमेंट। कैसे हम ये फाइंड आउट करते हैं? बिकॉज ऑफ दैट ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर हम इसके टाइम को चेंज कर देते हैं, हम इसके टाइम को चेंज करेंगे तो इसका टाइम भी बदलता रहेगा, ठीक है। अगर हम इसके टाइम को चेंज नहीं करते तो ये टाइम नहीं बदल सकता। ये भी टाइम है। टाइम मीन्स टेंसेस की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम इसका टेंस कन्वर्ट कर दें, बदल दें, फ्यूचर एंड प्रेजेंट को छोड़ कर अगर इसको पास कर दें तो टेंस का टोल्ड हो जाएगा। अगर जैसे मैंने इसको न्यू कर दिया तो दैट विल बी टोल्ड। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये स्टेटमेंट बदल रहा है। तो जो स्टेटमेंट अपने क्लास के अकॉर्डिंग बदलता है या अपने क्लास के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाता है, वह उस तरह का स्टेटमेंट सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, जो हमारा सेकंड टाइप है, ठीक है। मैं फिर आपको यही एक एग्जांपल दूंगा बट अबाउट सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। फिर मैं आप लोगों को लेकर के चलूंगा कॉम्बिनेशन, आई मीन सिंथेसिस की तरफ। नंबर सेकंड इज सबऑर्डिनेट clause. Number second is subordinate clause. What is that? It is a dependent clause. What is that? It is a dependent clause and it depends on principal clause. I mean principal clause. जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो ऑलवेज सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑलवेज प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड रहता है और ये डिपेंडेंट क्लॉज है। अभी जैसे मैंने एक नीचे एग्जांपल आपको समझाया था, मैं फिर से आपको वही एग्जांपल दिखाऊंगा या दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज, मैं आप लोगों को हिंट भी दे रहा हूँ, जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं वो किसी न किसी कंजक्शन से जुड़े रहते हैं। किससे जुड़े रहते हैं? कंजक्शन से। अच्छा इतना ध्यान रखिएगा, इट ऑलवेज it is always joined with a conjunction। तो जो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वह हमेशा किसी न किसी कंजक्शन से जुड़ा हुआ रहता है। इसका मतलब ये कह सकते हैं आप कि कंजक्शन, एनी कंजक्शन प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब हमारे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हम कंजक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, क्या हम कंजक्शन जानते हैं? तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेट क्लास के बाद मैं आपको कंजक्शन ही पढ़ाऊंगा, ठीक। क्योंकि जब तक हम कंजक्शन को क्लियर आउट नहीं करेंगे तब तक हमें सबऑर्डिनेट नहीं समझ में आएगा। देखते हैं एग्जांपल देखिए। इफ ही रन्स फास्ट
or win the race. So क्या आप यहाँ देख रहे हैं, if he runs fast, here are two statements, ये दो हमारे पास क्लासेस हैं, ठीक है, हमारे पास दो क्लासेस हैं। अब आपको इसमें फाइंड आउट करना है कौन सा सबऑर्डिनेट क्लास है, कौन सा प्रिंसिपल क्लास है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो प्रिंसिपल क्लास होता है वो फ्री स्टेटमेंट होता है, आई मीन इंडिपेंडेंट क्लास होता है, लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लास होता है वह डिपेंडेंट होता है, जो प्रिंसिपल क्लास पर डिपेंड होता है, ठीक। और एक हिंट मैंने आपको बताया कि एक जो सबऑर्डिनेट क्लास होता है वह हमेशा जुड़ा हुआ होता है एक कंजक्शन से। तो यहाँ देखिए कंजक्शन, ये हमारा इफ है और ये स्टेटमेंट जुड़ा है, तो आप यही कह सकते हैं कि ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लास है, ये हमारा क्या है सबऑर्डिनेट क्लास, और ये हमारा हो गया प्रिंसिपल क्लास, ठीक। ये स्टेटमेंट। अब आप कहेंगे कि अगर हम इसका टेंस कन्वर्ट करें, सॉरी ये रंस है, अगर हम इसका टेंस कन्वर्ट करेंगे तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर हम इसका टेंस कन्वर्ट करते हैं अगर हम ये टाइम चेंज करते हैं तो ये टाइम श्योरली चेंज हो जाएगा, ठीक है। हम इसको देख सकते हैं और फिर आगे भी बढ़ते हैं। नेक्स्ट मार्कर है क्या इसका नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट क्लास नंबर 30। कोऑर्डिनेट, about coordinate, it is independent clause also. Once again, what is that? A coordinate clause is also an independent clause. यह भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, इट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, यह भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, बट it is always joined with a coordinating conjunction. What is that? Coordinating conjunction. तो जो कोऑर्डिनेट क्लास होता है, अब इसमें हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, मीन्स ऑफ दैट एक प्रिंसिपल क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और कोऑर्डिनेट क्लॉज भी इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। बट दोनों में डिफरेंसेस क्या है कि जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है यह कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा होता है। अब हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अगर नहीं जानते तो कोऑर्डिनेट क्लॉज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन समझने के लिए एंड कोऑर्डिनेट क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। बट दीज आर, मैं आपको बता रहा हूँ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं। एंड, बोथ एंड, as well as not only but also, not only but also, either or, neither nor, yet, but these are coordinating conjunctions. These are coordinating conjunctions. ये सभी के सभी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, ठीक है। वैसे वर्ड्स को देखा जाए तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के 4 टाइप्स होते हैं। अभी मैंने बताया था कम्युलेटिव, एडवर्सेटिव, इलेटिव एंड अल्टरनेटिव। दीज आर द टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं 4 टाइप्स में होते हैं, ये इनके कंजंक्शंस हैं। अगर 2 स्टेटमेंट इनसे जुड़े हुए हैं तो समझ लीजिएगा कि आपका जो स्टेटमेंट है वो कोऑर्डिनेट क्लास ही है, जो स्टेटमेंट होगा वो कोऑर्डिनेट क्लास होगा। एंड वेरी इजीली यू कैन फॉर्म अ स्टेटमेंट बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज करके आप कोऑर्डिनेट क्लास इजीली बना सकते हैं। सो होप
आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको लाइक करिएगा और आपके जो फ्रेंड्स हैं, अगर आपके फ्रेंड जोन में हैं तो आप उनको बताइए कि आपकी क्लासेस चल रही हैं। और अगर आपके पास बुक्स नहीं हैं तो बुक्स ले लीजिए, क्योंकि मैं जो लिटरेचर की क्लास लूँगा वो लाइव क्लास चलेगा। आपको कोड भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा उसके लिए, और जो भी सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा है, जो टॉपिक्स आपको पढ़ाया जा रहा है उसके लिए बुक मस्ट है। तो सबसे पहले आपको बुक लेना चाहिए, आप बुक लीजिए और अपने आप को सेफ एंड साउंड रखें। थैंक यू।